नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सुमन कुमार सिंह यशस्वी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड यूपी पीसीएस और बिहार एपीयू इन दोनों के एग्जाम अपने डेट से ही कंडक्ट कराए जाएंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं डेली के करंट अफेयर कवर करा करूंगा और आज 30 अप्रैल 2020 है। लेट्स स्टार्ट। When Ayushman Bharat was celebrated across the country? Option A 30th April, 29th April, C 28th April, D 25th April। मैं कुछ गैप दूंगा, आंसर बताने की कोशिश करें, अदरवाइज उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। आंसर है 30th अप्रैल। Ayushman Bharat Divas was celebrated across the country every year on 30th April. We can see that there is an explanation of Ayushman Bharat Divas. Why it is celebrated across the country on 30th April? Because Ayushman Bharat was launched on 30th April by the Prime Minister. It helps and promote the affordable medical facility in the remote part of the country. The day include a special scheme that was launched by PM in the year 2018. And this scheme has a various benefit with a cover of 5 lakh rupees per family to be given per year. Next. The Indian Meteorological Department has released new name for the tropical cyclone in the Indian Ocean region. The name were contributed by how many countries? Indian Meteorological Department ने नया नाम रिलीज किया है इंडियन ओशियन रीजन के ट्रॉपिकल साइक्लोन का, और जिस नाम में कितने कंट्री का कंट्रीब्यूशन है। तो आपके ऑप्शन रहे ये 169 and 13, 170 and 10, 180 and 8, 172 and 13. So think what is the option? Option is 169 and 13. The Indian Meteorological Department has released 169 new names for the tropical cyclone in the Indian Ocean region. The names were contributed by 13 countries, namely India, Sri Lanka, Maldives, Myanmar, Oman, Thailand, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Yemen, Pakistan and Bangladesh. सॉरी, यहाँ बांग्लादेश होना चाहिए था, छूट गया, तो करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, The Indian Meteorological Department is an agency of Ministry of Earth Science of the Government of India. It is a principal organization responsible for the meteorological observation, weather forecasting and seismology. Meteorological Department Ministry of Earth and Science के अंदर आता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदर फॉरकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी थिंग। नेक्स्ट, on April 29, 2020, the Task Force on National Infrastructure Pipeline has been submitted its final report to the Finance Minister Nirmala Sitharaman. The report has been prepared for the year 2019 to 2025. The Finance Minister in her Union Budget speech 2019 to 20 had announced lakh crore for National Infrastructure Pipeline. So this question is saying there is a नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि डेवलप किया जाएगा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए, और अपने यूनियन बजट स्पीच के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट में कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वो कितने पैसे इशू करेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। आंसर बताइए। आंसर है 100 करोड़। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इट एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ ऑफ द सिटीजन इन द प्रोजेक्ट विल एम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इट हैज सेट अ टारगेट टू इट मेकिंग इंडिया अ 5 ट्रिलियन USD इकोनॉमी बाय 2025। ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जिससे कि इंडियन इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन $US के बराबर हो जाए 2025 तक। और इसमें विजन क्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2025 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, टू प्रोवाइड 100% डिजिटल कवरेज टू ऑल, to provide world-class quality education, to provide housing and water supply,
to double farmer income by 2022. Haryana Chief Minister Shri Manohar Lal Khattar launched a mobile application to provide all necessary services, including telemedicine, movement passes, assistance in procurement, delivery of dry ration and cooked food, education material, etc. in a single application amid कोरोना क्राइसिस। इस कोरोना क्राइसिस के दौरान श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि प्रोवाइड कराएगा नेसेसरी सर्विस लाइक फोन पे दवाई के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, मूवमेंट के लिए पास बनवाना है वो भी उस पर बन सकता है, ड्राई फ्रूट की डिलीवरी के लिए, कुक फूड की डिलीवरी के लिए, एजुकेशन मटेरियल एटसेट्रा के लिए। तो इस ऐप का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कोरोना हेल्प, हेल्प पीपल, हेल्प मी, फॉर पीपल हेल्प। बताइए, इसका आंसर है सी, हेल्प मी। दिस एप्लीकेशन इनेबल सिटीजन टू मेक रिक्वेस्ट फॉर ड्राई राशन, कुक फूड, LPG सिलेंडर, एम्बुलेंस, डॉक्टर, मूवमेंट पासेस, बैंक अपॉइंटमेंट्स एटसेट्रा एज पर नीड. He said means here Manohar Lal Khattar said that the moment any citizen files an option as per his or her requirement on the application, his request would be immediately be forwarded to the officer concerned of the relevant district to take necessary action. तो ये application आपको request देने के लिए बहुत यूजफुल रिक्वायरमेंट है। आपके बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो भी जरूरत के सामान है उसको आप एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं और आपको घर बैठे अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट, Which company has started hydrogen fuel cell based electric bus from Leh to Delhi? किस कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट किया है लेह से दिल्ली तक? NTPC, भेल, गेल, सेल। बताइए, ऑप्शन आपका सही आंसर है NTPC ए। NTPC Limited Central PSU under Ministry of Power has invited global expression of interest to provide 10 hydrogen fuel cell based electric bus and equal number of hydrogen fuel cell based electric cars in Leh and Delhi. ADB approved how much loan to India to fight COVID-19? Option 2 billion USD, 1.5 billion USD, 3 billion USD, 1 billion USD। कौन सा सही आंसर है? 1.5 बिलियन USD। आंसर बी इज करेक्ट। अब थोड़ा देख लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस है। मेंबर कंट्रीज 68 हैं एंड करंट प्रेसिडेंट इज मतासगु असाकवा, जो कि जापान से हैं और जो कि 17 जनवरी 2020 से कंटिन्यू है। The newly appointed Chief Justice of Meghalaya, Odisha and Bombay High Courts are, आपके ऑप्शन है श्री विनीत सरन, श्री कल्पेश सत्येंद्र झावेरी एंड श्री दीपांकर दत्ता। बी, श्री BP धर्माधिकारी, श्री MD रफीक, श्री विश्वनाथ सोमदार। सी, श्री विश्वनाथ सोमेदर, श्री मोहम्मद रफीक, श्री दीपांकर दत्ता। डी, श्री संजू पांडा, श्री मोहम्मद रफीक एंड श्री दीपांकर दत्ता। तो आपके आंसर बताएं। आपका आंसर है सी, श्री विश्वनाथ सोमदार, श्री मोहम्मद रफीक एंड श्री दीपांकर दत्ता। विश्वनाथ सोमदार इनको अपॉइंट किया गया था 27 अप्रैल 2020 को, मोहम्मद रफीक 27 अप्रैल 2020 को। ये दोनों क्रमशः मेघालय थे, उड़ीसा के लिए अपॉइंट किए गए हैं और श्री दीपांकर दत्ता को 28 अप्रैल को किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए। नेक्स्ट, Which of the following country loses hosting right of men's world boxing championship? आपके ऑप्शन हैं ईरान, चाइना, USA, इंडिया। तो बताइए कौन सा होगा? सही आंसर है इंडिया। देख लेते हैं इंडियन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में और स्टार्ट हुआ था मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो इन्होंने स्टार्ट कराया था वो 1974 में कराया था
और 2001 से वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हुआ था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, इन COVID-19 crisis, which institution has designed multi-surface sanitizer using UVC light है? IIT दिल्ली, DRDO, IIT कानपुर, IIT भुवनेश्वर। तो बताइए आंसर सही कौन सा है? सही आंसर है IIT भुवनेश्वर, आंसर डी। IIT Bhubaneswar has designed a safe and multi-surface sanitizer using UVC light. If an infected object or device placed into a chamber and once it gets exposed to ultraviolet light, the device would be disinfected within 15 minutes. तो मतलब कोई भी डिवाइस अगर 15 मिनट के लिए, जो भी इन्फेक्टेड डिवाइस है, चाहे कपड़ा है चाहे कुछ भी है, उसको उस चेम्बर में अगर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वो डिवाइस जो है डिसइंफेक्ट हो जाएगा, सारे उसमें जर्म्स मर जाएंगे, सारे वायरस मर जाएंगे। अल्ट्रावायलेट जर्मेडिकल इरिडिक्शन, इसका फुल नेम है, इज अ डिसइंफेक्शन मेथड दैट यूजेज शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by destroying nucleic acid and disrupting their DNA, leaving them unable to perform vital cellular function. Which country is going to start bounce back scheme in which banks will offer interest and payment free loans to small business that are entirely guaranteed by the government after opening the lockdown due to coronavirus? कौन सी कंट्री इंटरेस्ट फ्री लोन स्मॉल बिजनेस को प्रोवाइड कराएगी, वो भी गवर्नमेंट की गारंटी पे, जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो हुआ है वो खत्म होगा? आपके ऑप्शंस हैं USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इंडिया का तो नाम है ही नहीं, तो मतलब इंडिया नहीं प्रोवाइड कराएगा। तो कौन से ऑप्शन है? USA, UK। तो आपके सही आंसर है UK, आंसर बी। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सेशन आज के लिए ख़त्म करते हैं और कोशिश करूँगा कि हर दिन थोड़ा जल्दी अपलोड करूँ करंट अफेयर्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।